Good evening, everyone. Welcome to the Chart Studio. Welcome to the post market analysis. Today, we are going to analyze what actually happened in market, what actually happened in Nifty, Bank Nifty, Sensex, and what are the levels for tomorrow. We are even going to analyze commodities, gold, silver, and crude oil. What are the important levels and how you should be uh, trading, how you should be uh, deciding on the levels. What are the important levels for Nifty, Bank Nifty, Sensex? So let us start. So today we witnessed a very beautiful short covering, we can say. As you all know that in the morning market fell down and it even gave a breakdown. Okay. When I say breakdown, that means Nifty went below the important levels of 25,500 and it was sustaining for like 5 to 10, 15 minutes. Okay. But later on, it took a support there and it gave a beautiful upside with a very good breakout about 25,700 levels. Okay. So what actually happened today in the market? See, basically on expiry days, the whole scenario is always depend on support and resistance. And that has a reason. The reason is that on the support and resistance, there are like a lot of option buyers and sellers. Okay. Like the levels like 25,500, 25,700. These are the levels which has a lot of option buyers and sellers and they decide where the market is going to go. Okay. And one of the important factor is open interest. Okay. On which level there are call sellers, on which level there are put sellers, that decides that where market will go and how market will perform on especially on expiry days. Open interest is very important tool whenever you are analyzing Nifty, Bank Nifty or anything. Okay, open interest shows you where the market wants to go and how the stock or index is going to perform. Okay, so let us start with today's session. What actually happened in Nifty today was actually, uh, as you can say, yesterday Nifty closed with a little bit of negative bias, and in the morning, as it was expiry, everyone thought that Nifty can go down and everyone started selling. As you have might have seen everywhere there was put option, yeah, this, that. And later, after that, and once the market slipped, the Nifty slipped below 25,500, everyone thought that game is over. Today we are going to see a bloodbath in the market. But expiry days are very volatile. You cannot expect a one side move on expiry days. It is very rare that there will be one side move on expiry days. So what Nifty did is below 25,500, it sustained for 15-20 minutes. And later on, it shown a V-shaped recovery. You can say, see, this is a V-shaped recovery. Okay. And later on, where it gave a close about 25,700. Okay. So that is a positive bias. And you can see the buyers have bought at the end of the day. And Nifty, there is a good volumes at the end of the day and buyers have bought for the next day. This is what you can analyze. You can understand that what is going to happen on the next day. Now, what are the important levels for tomorrow? For Nifty, important level is going to be 25,700 to 25,650. This is a very important level where we have marked. See, before few days, it was a resistance. Here it took a resistance. Later, it went down also. People were expecting that market may fall from this resistance, but it went against it. See, in the market, you do not have to like judge anything. Okay. Price is the best friend. As the price moves, you have to move. You cannot decide the price. You cannot fix the price. Okay. So always you have to move with the price. If it is breaking, you have to, if it is not breaking, if it is breaking down, you have to go down. So that is how it works. वैसे ही आपको काम करना पड़ता है यहाँ पे. Price action is 80% important and 20% important is your emotions. Okay, how do you track it? अगर आपके दिमाग में यही है कि नहीं, ये यहाँ से, ये जो लेवल है यहाँ से नीचे ही जाने वाला है, नीचे ही जाने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी ऑन द नेगेटिव साइड.
बट इफ यू आर न्यूट्रल कि कहीं भी जाए, आई हैव माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोइंग टू एक्ट, देन आपको वो अपसाइड या उस हिसाब से मिल सकता है। ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो? इंपॉर्टेंट लेवल्स इज 25,700 से लेके 25,800, ये 100 पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अबाउट 25,800 यू विल बी एबल टू सी 26,000 एंड 26,100। हमने बहुत टाइम से पहले से डिस्कस किया है दैट 26,800 रिमेन्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑन द डाउन साइड once again 25,500 and up below that 25,400, as you can see this 25,340 levels, but वहाँ पे क्लोज नहीं होता है, क्लोज अबाउ। तो 25,350 से 25,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूटता भी है इन केस, तो मार्केट 25,000 के पास जाने का जा सकता है। ओके, एंड ऑन द अपसाइड 25,700 क्रॉस करके मार्केट विल मूव टूवर्ड्स 26,000। स्मॉल रेजिस्टेंस इज अराउंड 25,800, प्रोबेबली उसको भी क्रॉस करके मार्केट आगे निकल सकता है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। यू ऑलवेज हैव टू नोट द लेवल्स so that it helps you during, if you are trading, then it will help you in that way. If you are not trading, if you are just watching, it will build your confidence. Okay, so next is bank nifty. ओके, बैंक निफ्टी ने भी आज सेम वी शेप रिकवरी दी है। बैंक निफ्टी कल से थोड़ा बहुत वीक लग रहा था, एज यू कैन सी बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत का ज़्यादा नीचे आया था, बट अगेन इसने 57,500 के आसपास सपोर्ट लिया एंड इट वेंट अबाउ 58,000, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी प्रोबेबली कल के सेशन में 58,200 से 250 तक जा सकता है। वो एक जो रेजिस्टेंस है उसको, वो जो एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ओवरऑल व्यू भी बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का है। द मेन सपोर्ट इज एट 57,250 एंड ऑन द अपसाइड 58,300 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। सी, यहाँ पे भी इसके ऊपर नहीं गया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। सो बैंक निफ्टी को 58,250 58,300 के ऊपर जाने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। एंड ऑन द डाउन साइड 57,500 और इसके नीचे 57,250 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आई वांट यू टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू चेक सेंसेक्स। सेंसेक्स इज अगेन अ वेरी वेरी वोलेटाइल सेगमेंट। ठीक है, सेंसेक्स एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सेगमेंट है। अगर आप आज के दिन में देखो तो व्हाट हैज सेंसेक्स डन? जो भी लेवल्स हमने मार्क किए हैं, सी, एंड इट इज मार्किंग दीज लेवल्स इज वेरी इजी, यू डू नॉट हैव टू मास्टर इट। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अगर इस पे ध्यान दोगे, थोड़ा बहुत आप करते रहोगे, तो आपको लेवल्स मार्क करना भी आ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया, इट वेंट अप, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इट वेंट अप, यहाँ पे से सपोर्ट लिया, इट वेंट अप। बट जो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, उसको क्रॉस करके वो आज आगे निकला है। ठीक है, तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव लगता है। ऑन द डाउन साइड अगेन 83,150 विल बी अ रेजिस्टेंस। ऑन द अप साइड 84,200 विल बी अ रेजिस्टेंस। ऑन द डाउन साइड 83,150 इज अ सपोर्ट, एंड अगर उसके भी नीचे आता है तो 82,650 विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओवरऑल currently the view is buy on dips until and unless market 25,200 के नीचे क्लोज नहीं कर जाता, तब तक व्यू इज बाय ऑन डिप्स। एंड एकदम ही बुलिश कब हो जाएंगे? जब मार्केट 26,100 के ऊपर क्लोज दे देता है। विल सी द लेवल्स ऑफ 26,500, 600 एंड 27,000 ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट कैन अटेम्प्ट टू गो टूवर्ड्स 30,000 टिल नेक्स्ट दिवाली। ओके, ये अगर कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती है या अगर ग्लोबली कुछ बड़ा नहीं होता है, देन मार्केट में अटेम्प्ट टू गो टूवर्ड्स 30,000 लेवल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक सिल्वर। सिल्वर में वी आर वेरी वेरी बुलिश। ठीक है, ओवरऑल द व्यू इज ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। जैसे ही नीचे आता है सिल्वर में बाइंग आ जाती है। ठीक है, पहले जो सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 1,40,1,41,000। करेंटली द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिमेन्स एट 1,50,000 टू 1,51,000। ओके, एंड ऑन द अपसाइड 1,56,000 विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, एज यू कैन सी
बहुत टाइम से ये लेवल के ऊपर नहीं गया है। एक बार 1,56,000 क्रॉस करेगा, विल सी द लेवल्स ऑफ 1,60,000 ऑल्सो। ओके, बट करेंटली सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अगर नीचे आता है, यू विल बी सीइंग बाइंग इन सिल्वर। गोल्ड, गोल्ड के लिए सी 1,24,000 1,25,000 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था बहुत टाइम से, कि भाई ये हो सकता है, वहीं पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, एवरीवेयर इट इज टेकिंग सपोर्ट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन द लेवल्स ऑफ गोल्ड ऑन द डाउन साइड। सी इफ यू आर ट्रेडिंग, तो उसके लिए भी लेवल्स हैं। ऑन द डाउन साइड 1,24,600 का लेवल है, ऑन अप साइड 1,25,270, इसके ऊपर निकलेगा 1,26,000 1,27,000 तक देख सकते हैं। अगर ब्रॉडर व्यू चाहिए तो ऑन द डाउन साइड 1,18,000 एंड ऑन द अप साइड 1,21,000 था, जिसको आराम से क्रॉस कर लिया गोल्ड ने। नाउ ऑन द अप साइड 1,26,000 रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड ऑन द डाउन साइड 1,24,000। ये एक छोटी सी रेंज है गोल्ड की। ओवरऑल गोल्ड का भी व्यू बाय ऑन डिप्स है, अनटिल एंड अनलेस गोल्ड 1,18,000 के नीचे क्लोज नहीं देता। ओके, currently my view for the next 1 year is gold will move towards 130 135 levels. Now we are going to check crude oil. Crude oil bullish लगता है। अगर 5,400 का लेवल क्रॉस करेगा, विल सी द लेवल्स ऑफ 5,500 टू 5,600। ऑन द डाउन साइड 5,200 रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ब्रॉडर व्यू देखने जाए तो ऑन द डाउन साइड 5,000 रिमेन्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ऑन द अप साइड 5,500। ओके, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने जैसे हैं। क्रूड ऑयल इज करेंटली ट्रेडिंग इन अ रेंज, तो अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं तो ऑन द डाउन साइड 5,300 का एसएल लगा के आप काम कर सकते हो एंड ऑन द अप साइड 5,550 5,600 तक रुक सकता है, वहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्स एंड कमोडिटीज। वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्यू स्टॉक्स नाउ। उसके बाद अभी स्टॉक्स की एनालिसिस चलेगी। विल get some stocks which may give you breakout or breakdown in tomorrow's session, and we'll definitely make a video on that also. Okay, in case if you have any queries, do let me know in the comments in YouTube. I will definitely get back to you. And make sure you follow me and share this video with as much as people you can, so that even I can get the motivation and I keep on doing the same thing again and again. I hope this helps you. Thank you so much for your time. We'll see you in the next session.